Hello students. In this video, I'm going to discuss memory-based questions and their answers of NET exam, NET physics basically, which was held yesterday. Yesterday, I could not make this video because I was caught up somewhere else. That's why I'm making it now. See, this is a question. It says for what value of this b, ये जो b है यहाँ पे इसका for what value of this b, this function is an eigen function of this operator d2 by dx square minus bx square. तो जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स बताया कि इसमें कुछ इस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू सी ये जो ऑपरेटर है, अगर इसके इस पार्ट पे हम फोकस करें तो दिस इज एन आइगन, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट बैक द सेम थिंग एंड आइगन वैल्यू विल बी ए स्क्वायर, ओके। सो दिस फंक्शन इज डेफिनेटली एन आइगन फंक्शन ऑफ दिस operator, okay. If we ignore this term, okay, so therefore we can just say that if b is 0, then this is an eigen function of this operator, okay. So therefore b equal to 0 we can take, okay. So this can be one probable answer, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ये एक आंसर है इसका। तो अगर जीरो ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम लोग जीरो ही टिक करेंगे, ठीक है। वाई शुड वी टिक अदर ऑप्शंस, ओके। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन इज some a very well known question. Actually it is from our assignment, okay. It was given in our assignment, and I had actually taken it from some book, but I don't remember from which book I had taken it. So its answer, I'm not discussing its detailed solution. Its answer is this, okay. So in this video, I'm basically discussing answers of the question. Okay, some questions I'll discuss. See, this is somewhat a longer question. Okay, that's why I'm not discussing its solution. You can apply the method which is used to derive the generating function. Okay, you will see that this is the answer. All right. Next question. See, this is a question from Lagrangian. It says that there is a Lagrangian given, and it says then conserved quantity is what, okay. See, this Lagrangian, if you see, this Lagrangian is invariant under this transformation. If you transform x to x plus some 2 alpha, okay, and y to, ठीक है, y minus alpha, okay. So if you do this transformation, then this Lagrangian will not change, okay. So that's why here conserved quantity will be, or you can just say that here we have x plus 2y, so you just exchange the coefficient of x and y in px and py. So conserved quantity will be this much. Coefficient of y is 2, so here I will multiply by 2, and coefficient of x is 1, so py will be 1, okay. But both are positive here, so I'll write one negative sign. So this quantity will be conserved quantity, okay. Now we can write here something like this: 2, and there is del L by del X dot minus, and this is del L by del Y dot, okay. So something like this, okay. So 2, and when you differentiate it with respect to X dot, you will get 15 X dot, um, okay. M is everywhere, okay. So M I'm not writing. So 15 X dot from here you will get, and from here you will get 6 Y dot, okay. And minus, when you differentiate by y dot, okay, when you differentiate by y dot, you get here 6x dot, and plus this one will give you 6y dot, something like this, okay. So just so this is the conserved quantity, okay. This quantity is conserved, okay. So I'm just doing a calculation so that we can express this in terms of x dot and y dot, okay. So now you see this is 30 में से ये आप माइनस कर दोगे 6, तो it will become 24x dot, and here you will get 12 minus 6, so you will get here I think 12, sorry 6 y dot. So something like of this kind you will get, okay. this इस तरह कुछ आंसर आ जाएगा। तो 6 if you can take common, 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x डॉट प्लस y डॉट ऐसा कुछ आ सकता है, okay. So that type of, but this type of option is not given. this अच्छा ये आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे ना, तो 3 कॉमन लोगे तो you will get here 4x dot, here it is coming out to be 4x dot plus y dot, okay. So if something 12x dot plus 3y dot is written, okay, then you can take 3 common, so you are getting 4x dot plus 3y dot, so that is 4x dot plus y dot, so this option will be correct in that case, okay.
ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि देर इज bromine and its atomic number is given and it says that spectroscopic term for ground state हमें फाइंड करना है। तो देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Br प्लस, ठीक है। नाउ द outermost subshell is this 4p5 4p4, ठीक है। so here you if you see 4 electrons are occupied like this, okay, sorry, and there will be one more here, okay. So here see ml values, if we write ml is equal to, so this is basically -1 0 +1, okay. So if you do the basically summation ml value calculation, तो ml sum of ml जो है ना -1 आ रहा है। Similarly if you calculate sum of ms, that is coming out to be 1 because here सम ऑफ एम एल आप करोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये 2 बार -1 काउंट होगा और 1 बार +1 काउंट होगा। सम ऑफ एम एस करोगे तो इन दोनों का 0 हो जाएगा एम एस, और इन दोनों से प्लस हाफ यू विल गेट +1, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि L इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाइज दैट क्योंकि एम एल अगर इसको कैपिटल एम एल कह सकते हो, यू कैन कॉल इट कैपिटल एम एल एंड दिस इज कैपिटल एम एस। सो इफ कैपिटल एम एस इज 1 इट मीन्स एस इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू सी हियर इफ यू कैलकुलेट जे, ओके, तो ये जो है ना बेसिकली मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे इक्वल टू एल प्लस एस कर देंगे, तो जे जो है ना यहाँ पे एल प्लस एस करोगे ना तो 2 आ जाएगा एल प्लस एस से। सो देयरफॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऐसा हो जाएगा, एल यहाँ पे लिखा हुआ है तो पी हो गया, और 2s+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3p2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट सी दिस वाज ए क्वेश्चन I asked the students about this question. Okay, what was the basically radius of the contour, but they could not tell about the contour. Okay, they had forgotten actually. So suppose here this contour represents circle of radius 1 centered at origin. So in that case, this singular point which is at z equal to 2 will lie outside the contour. Okay, so there will not be any singular point inside the contour. So in that case, this integral will be equal to 0. ठीक है ना, this integral will become 0. Okay, if we take a bigger contour, ठीक है ना, C is suppose mod z equal to something दिया हुआ है 3, ठीक है। So in that case, this z equal to 2 will come inside, and there will be pole of order 2 here. Okay. So in that case, you can calculate it. So it will become iota is equal to 2. So if basically I'm saying that this singular point is within the contour, in that case, you will get here 2 pi iota, and here it is 1 by 2 pi iota. Okay. And sorry, 2 pi iota. And residue of this we can calculate. Okay, so it will come out to be first, it is second order pole, so it will be just first derivative of this quantity calculated at z equal to 2. So if you calculate first derivative of this, it will be 5k, and cos in place of z will put 2, so it will become 2k. Okay, so 2 pi iota will cancel out, so you'll get answer 5k cos 2k. Okay. So if the singular point is within the contour, then you are getting this answer. Okay, if a singular point is not within the contour, then you will get 0 answer. Okay. Next question. See, it says a particle in cubic box, okay, has this much energy, 14. Okay, 14 pi square h bar square upon 2 ml square. So if there is cubical box, we know that energy is written like this, pi square h bar square upon 2 ml square, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा nx square plus ny square plus nz square, something like this. So obviously if we use nx is equal to, suppose here we use 3 ny इक्वल टू, मान लो हमने 1 यूज कर लिया और इसको भी 1 यूज करते हैं, तो 3 स्क्वायर, दिस विल बिकम 9। अच्छा, इसको 2 यूज कर लेते हैं, 2, ठीक है। तो 9 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इफ यू यूज 3 2 and 1, okay, then we are getting this sum equal to 14. Okay, so we will get this energy. So obviously that option will be correct, in which there is a combination of 3 2 and 1. Okay, so something of this kind will be correct answer. Okay, so there should be a 3 term
इन एनी ऑफ दीज टर्म्स, ओके, जैसे x के साथ 3 हो सकता है, या y के साथ 3 हो सकता है, या z के साथ, बट 3, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. देयर शुड बी 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इन एनर्जी. ओके, देन only you are going to get 40. Okay. Next, there was a question that if on this state 3 iota 4 1 by 5, on this state sx is measured, then probability of getting plus h bar by 2 and minus h bar by 2. Okay, so this is a very simple question. Okay, you know that sx has this sx has eigenvalues 1 by root 2, okay, and 1 1, okay, and 1 by root 2, and here 1 or minus 1. So these are the eigenvalues of sx. Okay, so therefore, if you want to calculate probability of getting plus h bar by 2, okay, what you can do is that this after measurement of sx, if you are getting plus h bar by 2, then final state will be this much. Okay, because system will collapse into this state. Okay, so in that case, this will be initial state and this will be final state. तो हम initial और final state का inner product निकाल कर उसका मॉडुलस के स्क्वायर कर देंगे तो वही probability हो जाएगा. तो बस हमने इसका इसका इनर प्रोडक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो एक इस स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, ठीक है ना. तो इसलिए 1 माइनस 1/2 कर दिया तो 1/2 आंसर आ रहा है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस 1/2 और प्लस एच बार बाई टू और माइनस एच बार बाई टू दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसमें जो है ना, ये दिया गया है कि एक पर्टर्बेशन है, ठीक है ना. दिस पर्टर्बेशन इज अप्लाइड टू ए पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल वेल. ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है. तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो आप सभी जानते हो कि पर्टर्बेशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेना होगा. तो क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो आपको ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है ना, वो सब यहाँ पुट कर दिया गया है, पर्टर्बेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है ना. एंड वी हैव डन दिस कैलकुलेशन. ओके, एंड सी यू आर गेटिंग जीरो आंसर. तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है. सो आंसर इज जीरो. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है. जैसे आप इस फंक्शन को प्लॉट करिए, देखिए x इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, ठीक है ना. और x इक्वल टू a पे जो है ना, ये पाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है. सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज पॉजिटिव एवरीवेयर, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है. और अगर हम इस पर्टर्बेशन को देख रहे हैं ना, पर्टर्बेशन को, तो ये आप देखिए ऐसा है, इस तरह से है. ये ऐसा होगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, और फिर ये ऐसा है. तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट को प्लॉट करोगे ना, तो हाफ पोर्शन में ये पॉजिटिव आएगा और अनदर हाफ में, क्योंकि ये पर्टर्बेशन, ये ब्लू, ये ऑरेंज कलर से हम जो है ना पर्टर्बेशन को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना. दिस इज वीपी. तो अनदर हाफ में ये जो है ना नेगेटिव आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन इज जस्ट ए समेशन. तो हाफ पोर्शन में ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, हाफ पोर्शन में नेगेटिव आ रहा है. ओके, तो इसीलिए टोटल तो जीरो हो नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए जीरो आंसर आएगा इसका, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्फेयर है. देयर इज ए स्फेयर, इट्स रेडियस इज गिवन टू बी r/2. रेडियस इसका r/2 है, एंड इट इज सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ठीक है. तो ये एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 0 0 r पे वाई एक्सिस पे, सपोज दिस इज एक जेड एक्सिस. ओके, तो जेड एक्सिस पे 0 0 r पे एक पॉइंट है, ठीक है. एक्स एक्सिस पे √2r 0 0 पे एक पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे 0 r 0 पे एक पॉइंट है, ठीक है. तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर उसका सम करके बताना है कि इन टर्म्स ऑफ Q/4πε0 r स्क्वायर के टर्म में क्या आंसर आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, ठीक है. इस पे चार्ज Q दिया हुआ है, तो ऐसा तो कुछ आएगा ही, ठीक है ना. Q/4πε0 r स्क्वायर तो आना ही है, ठीक है ना. अब जैसे डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का r है, तो इसमें 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे ना, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, और फिर इसका एलसीएम लिए ले लेंगे तो 5/2, ये वाला ऐड करके आप देख लो तो ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना. सो करेक्ट आंसर विल बी 5/2, ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, आई हैड वन मोर क्वेश्चन, आई गॉट इट लेटर ऑन. ये हम पीपीटी पहले बना लिए थे, ठीक है ना. तो देखो बाद में मुझे क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने सेंड किया, ठीक है. इट सेज कि देयर इज ए there is a series something like this: 1/1 to the power 4 plus 1/2 to the power 4 plus 1/3 to the power 4, ठीक है, प्लस 1/4 to the power 4 अप टू इन्फिनिटी,
ठीक है, इस तरह से दिस इज इक्वल टू पाई टू द पावर 4/90 है। ठीक है दिस, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/3 टू द पावर 4, नहीं, इसमें फिर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, अच्छा 1/1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/5 टू द पावर 4, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सी, अगर हम लोग जैसे ये सीरीज है, ठीक है ना, इस सीरीज में अब इस सम को मान लीजिए, ये जो सम है ना, लेट अस कॉल दिस सम इक्वल टू समथिंग बोल देते हैं इसको, मान लीजिए एक्स बोल देते हैं। ठीक है, दिस सम इज एक्स, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, तो इसको एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए वन वन 1/1 टू द पावर 4, 1/3 टू द पावर 4, 1/5 टू द पावर 4, इस तरह से एक एक्स का टर्म तो प्रेजेंट है ही है, प्लस जो बच जाएगा यहाँ पे वो ऐसा होगा 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस 1/6 टू द पावर 4, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू है पाई टू द पावर 4/90। ठीक है, तो ये एक्स प्लस इन सभी से हम 2 टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2 स्क्वायर पावर 4, दिस वी कैन राइट लाइक दिस, ओके, एंड दिस वन वी कैन राइट लाइक दिस 3 स्क्वायर, नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 भी आ रहा है ना, ठीक है, तो एक्चुअली इसको ऐसे लिख दो, 1 मिनट रुको, वी कैन राइट इट लाइक दिस, जैसे इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर जैसे यहाँ पे अब 4 और टर्म्स, तो हम लोग और टर्म जो था ना यहाँ 1 3 5, इन सभी का सम को हमने एक्स लिख दिया है, 1 3 5 वाले टर्म को हमने एक्स लिख दिया है यहाँ पे, इवन टर्म से बच रहे हैं, ठीक है ना, तो इवन टर्म को आप 2 के मल्टीपल में ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लोगे ना सभी से, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 टू द पावर 4 और प्लस यहाँ पे, क्योंकि 2 इंटू 2 हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो एक 2 हमने कॉमन लिया तो एक 2 बच जाएगा, 2 टू द पावर 4 बच जाएगा, फिर वहाँ पे यहाँ पे बचेगा 2 कॉमन ले लोगे तो 3 टू द पावर 4, ठीक है ना, इस तरह से फिर ये कंटिन्यू होता जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे पाई टू द पावर 4/90 है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सम करोगे आप लोग, ठीक है ना, दिस एक्स प्लस, तो यहाँ पे 1/16 हो गया और प्लस दिस होल सम इज अगेन इक्वल टू दिस मच, ओके, तो ये बन जाएगा पाई टू द पावर 4/90, ओके, दैट इज इक्वल टू पाई टू द पावर 4/90 हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू पाई टू द पावर 4/90 कॉमन आ जाएगा और इंटू ये 15/16 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिलेशन कर दोगे तो 15×6 = 90 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा पाई टू द पावर 4/96, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। नाउ सी दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम SSP सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें बोला गया है डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी लाइक दिस E⁻²। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें डिपेंडेंस जो होता है ना वो ऐसा होता है, एनर्जी टू द पावर D/S-1, तो इसका मतलब है D/S-1 का वैल्यू जो है ना यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो डायमेंशन यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3/S-1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसको उस साइड ले आओगे, ठीक है ना, तो S का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, S इज 1। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो होता है ना लो टेम्परेचर पे वो इस तरह से वैरी करता है, T⁻D/S, ठीक है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, D डायमेंशन 3 है और S का वैल्यू 1 है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखिए बोला गया है 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल 0 और E में डिस्ट्रीब्यूट करना है। E के बारे में बोला गया है डबल डीजनरेट है, तो मतलब ऐसा है, E जो है ना डबल डीजनरेट है, मतलब ऐसे हम लिखेंगे जीरो, जैसे ये 0 है और ये E है, तो इसकी डिजनरेसी जो है ना ये 1 है और इसकी डिजनरेसी जो है वो 2 है, तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालिए, तो ये तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो बस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे इसको मान लो G1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको G2 बोलते हैं, तो ऐसा हो जाएगा G1 टू द पावर N1, इसमें कितने पार्टिकल होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे G2 टू द पावर N2, और यहाँ पे N1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे N2 फैक्टोरियल, ठीक है, और N2 फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे N फैक्टोरियल टोटल। तो अब इसमें देखिए ये भी बोला गया है कि फॉर एनर्जी टू बी इक्वल टू 2E, तो और इसमें 5 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 5 पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली एनर्जी 2E चाहिए, तो आपको 2 पार्टिकल यहाँ पे रखना होगा, तो एनर्जी 2E हो जाएगा, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स रखना होगा, ठीक है,
तो ठीक है, तो इसमें देखो जीवन इसका वैल्यू 1 है, तो 1 टू द पावर यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, टू इसकी डिजेनरेसी 2 है तो 2 टू द पावर, यहाँ पे 2 पार्टिकल पुट करो और 2 कर दोगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं n1 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। और n2 फैक्टोरियल करोगे तो n2 इज 2 तो 2 फैक्टोरियल हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है ये, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट्स द आंसर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इंटू 120 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 और इंटू 2, तो ये 12 हो गया, 12 12 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा आंसर इसका। आंसर इज 40, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, और पूछा गया है इसमें कि हमें चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस बी आर, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे आर कैप बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन टेक जस्ट डाइवर्जेंस ऑफ, यू कैन अप्लाई गॉसेस लॉ, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डाइवर्जेंस हम लेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि इसका ग्रेडियंट लोगे, पहले इसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट लोगे ना तो ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, इसका ग्रेडियंट ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस बी आर, और फिर ये आर कैप अपॉन आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्लस, सो वी हैव टेकन ग्रेडियंट ऑफ दिस एंड, अच्छा नहीं, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ग्रेडियंट लोगे ना तो उसमें आर कैप आएगा और ये आर कैप डॉट होकर के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/r² सिर्फ आएगा, 1/r², क्योंकि ग्रेडियंट लेने से आर कैप भी आएगा ना उसमें, ठीक है। और अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम इसका ग्रेडियंट ले लेंगे, इसका मतलब डाइवर्जेंस लेंगे, ठीक है ना। तो इसका डाइवर्जेंस लोगे यहाँ पे डॉट, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डाइवर्जेंस लोगे ना तो इससे डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस बी आर, और ये हो जाएगा 4 पाई डिराक डेल्टा आर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। दिस व्हाट यू विल गेट, ओके। तो डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है ना कि यहाँ पे डिराक डेल्टा, जैसे यहाँ पे आर माइनस जीरो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर की जगह आप जीरो पुट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रो का वैल्यू जो निकलेगा ना यहाँ से, रो इज इक्वल टू वो इतना आ जाएगा 1/4 4 पाई, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये तो बन जाएगा हमारा 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, दिस विल बिकम जस्ट 1, ओके। और यहाँ पे माइनस बी, ये माइनस बी है अपॉन आर स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस बी आर, तो इस कुछ इस फॉर्म में आएगा आंसर इसका। और वी कैन कीप डिराक डेल्टा ऑल्सो, अगर हम चाहते हैं डिराक डेल्टा को यहाँ पे रख सकते हैं, अगर रखोगे तो ई पावर माइनस बी आर और डिराक डेल्टा भी होगा, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देर सी देर इज अ क्वेश्चन ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स, इट सेज फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसके लिए दिया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल टू है यहाँ पे 2 टू द पावर k, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो k इक्वल टू व्हाट, दैट्स द क्वेश्चन, ओके। तो देखिए इसमें एक्चुअली हमारे पास अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, जैसे मान लो एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अल्फा आई अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी अल्फा टू द पावर n-1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। यू कैन चेक इट, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ, अगर हम यहाँ पे अल्फा की जगह 2 लिख देते हैं तो देखो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 की जगह पे n-1 आ जाएगा, ठीक है। दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट यूजिंग द इनवर्स फार्मूला, इनवर्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो तो एडजॉइंट आप ऐसे लिखते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस, यूजिंग दिस यू कैन गेट दिस रिजल्ट वेरी इजिली। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव हियर, ओके। अच्छा, one more question is there in this paper. See, there is a question, something like this. There is z to the power 4 and e to the power 1/2z और dz है, ठीक है। This contour integration we have to do, okay.
तो इसमें परहैप्स सर्कल जो कंटूर दिया हुआ है ना, दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसमें जो है ना जो सिंगुलर पॉइंट है वो z इक्वल टू 0 है, दैट इज एक्चुअली एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो आप इसका रेसिड्यू निकालना चाहते हो ना, तो बस इसमें ऐसा, इसको दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कॉशी रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ 1/z हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 जो है ना, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ 1/z एक्चुअली। सो दिस विल बिकम 2 पाई आयोटा, एंड कॉफिशिएंट ऑफ 1/z इसमें कैलकुलेट करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे ना, 1/z⁵ वाला टर्म जो होगा ना, वो उसमें से z4 कैंसिल होगा। जैसे ई का पावर ऐसे लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, प्लस x⁵ बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम x की जगह 1/2z पुट करेंगे ना, तो 1/2, तो उस तरह का टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि z⁵ इससे कैंसिल होगा, 1/z बच जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 पुट करना होगा ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा 2 भी एक आएगा और एक फैक्टोरियल 5 भी आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। So that's all in this video. ठीक है. If I get more questions, then I will make another video also. Okay. You can send your, if you have your some memory based questions, if you remember some question, then you can send it on this number. All right.